आज का विषय क्या है? Call the Lord and Lord is not enough. प्रभु प्रभु चिल्लाने से बहुत नहीं है। You say God, God, it is not enough, Bible says. अगर आप सिर्फ कहते हैं प्रभु प्रभु प्रभु, यही करना बहुत नहीं है। And then also the Bible says, who are called upon the name Lord, Lord will never enter the kingdom of और God. बाइबल ये भी बताती है कि जो लोग सिर्फ प्रभु प्रभु बोलते हैं वो लोग स्वर्ग नहीं The जाएंगे। name that you carry, Jesus Christ. आप जो यीशु का नाम लेके घूम रहे हैं, Or your name that you carry, Jesus, or Christian. या आप अपने आप को एक मसीही विश्वासी बोलते हैं, Christian will never lead to heaven. आपके विश्वासी होने से आप स्वर्ग कभी नहीं जाएंगे। Or the name that you're using, a professor. You know, your profession. या आप अपना जो व्यवसाय का जो आप ठप्पा लगा घूमते हैं, I am a pastor. जैसे ये पास्टर है, Pastor will never lead to heaven. सिर्फ पास्टर का ठप्पा लगाने से स्वर्ग I नहीं जाएंगे। am a believer. ये एक विश्वासी है, I am a Christian. ये एक क्रिश्चियन है, The name will never take to ये heaven. ठप्पा इनको कभी इनको स्वर्ग नहीं लेकर You are जाएगा। an officer. आप ऑफिसर You हैं, are a आप businessman. व्यापार करते हैं, You are come to church. आप चर्च आते It हैं, will never lead you to heaven. ये सब करने से भी आप स्वर्ग नहीं You जाएंगे। are a businessman. You know, आप you are a व्यापार rich करते हैं, man. आप अमीर हैं, You are a poor man. आप गरीब You हैं, are a sick. आप बीमार You हैं, are a good health. आप अच्छी सेहत में It हैं, will never lead to heaven. ये सारी चीजें स्वर्ग नहीं लेके जाएंगे। The Bible says, बाइबल क्या बताती है? using the name, कि सिर्फ नाम इस्तेमाल करके, calling your name as a Christian, सिर्फ अपने आप को एक मसीही बोल देने से it will never enter to the kingdom of आप God. स्वर्ग नहीं जाएंगे। Then what is this? तो फिर कैसे जाएंगे? The Bible says, बाइबल क्या let बताती है? us also turn to Matthew. हम खोलते हैं मत्ती का सुसमाचार, Matthew chapter 7. मत्ती 7, Matthew chapter 7 verse 21. मत्ती 7 का 21। Matthew chapter 7 verse 21. What the Bible says. बाइबल क्या बताती है? मत्ती 7 का 21 में। Matthew chapter नया 7 नियम पेज नंबर 11। verse 21. I will read here in English saying, not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the only who does the will of my Father who is in heaven. And then also many will say to me, oh, that day when I judge them, and Lord, Lord, I have not prophesied in your name, I have driven out in your name, I have cast out the demon, performing miracles, signs, and wonder. And then verse 23, and then I will declare to you publicly, I will never knew you. Depart from me, you banished from my presence, you who have wicked, and then I have commanded you. Amen. यहाँ देखते हैं मत्ती 7 के 21 से क्या लिखा हुआ है, क्या है पेज नंबर पे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। Amen. So here the Bible strictly say to us. यहाँ बाइबल बहुत अच्छे से हमें समझा रही है। We start again in the Luke chapter 16 and Luke chapter 6. फिर से बोलते हैं मरकुस Luke chapter 6 we start again. लूका 6। Today my main topic I will speak there. Luke chapter 6 verse 46. Luke chapter 6 verse 46 what the Bible says. Verse 46. Why do you call me Lord, Lord, and do not practice what I tell you? Everyone who come to me and listen to my word and obey them, I will show you whom he is like. लूका 6 का 46वां वचन, पेज नंबर 93, 93 पेज नंबर 46 वचन। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो उस पर घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। Amen. So here the Bible says, Lord, Lord, you call Jesus, and you call I am a Christian. तो प्रभु कह रहे हैं कि तुम अपने आप को मसीही कहते हो, विश्वासी कहते हो, और हे प्रभु रोज बोलते रहते हो। It will never enter to the kingdom of God. ये सब करने से कभी आप प्रभु के राज्य में नहीं जाओगे। Or you say I'm a Christian. आप कहोगे हाँ मैं तो क्रिश्चियन हूँ। Every day you go to church. चर्च भी रोज जा रहे You हो, read Bible. बाइबल भी रोज पढ़ You रहे हो, pray. प्रार्थना भी रोज कर रहे That हो। will never lead you to heaven. इससे आप कभी स्वर्ग नहीं जाओगे। Even the Bible says, बाइबल क्या बता रही है? Matthew chapter 7, मत्ती 7 में verse 21. 21 If you call Lord, Lord, अगर तुम प्रभु
In the last day, अंत के दिनों में God will say, I don't know you. प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मैं ये कह दूंगा। The people who are performing miracles, क्योंकि जो लोग चमत्कार कर रहे हैं, God will say, I don't know you. प्रभु उनसे क्या बोलेगा कि मैं नहीं जानता हूँ। And then healing that you coming, जो चंगाई आप कर रहे हो, healing will not save your life. चंगाई होने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे। Healing is a blessing. चंगाई तो सिर्फ एक आशीष है। God bless you. प्रभु ने आपको And आशीष you दिया। don't want your sickness. आप बीमारी नहीं हो। But don't think that I am healed and you go to heaven. अगर आप बीमारी से ठीक हो गए तो ये ना सोचे चंगाई पाने से आप स्वर्ग चले जाएंगे। Don't think that I baptize, I go to heaven. ये भी ना सोचे कि बपतिस्मा ले लिए तो भी स्वर्ग चले जाएंगे। Many people they say I baptize. बहुत लोग बपतिस्मा लेते हैं They thought that the baptism take a certificate to go to और heaven. लोग सोचते हैं बपतिस्मा का सर्टिफिकेट से ना हेवन के अंदर घुस सकता हूँ। So here the Bible say, या बाइबल क्या you बताता है? call me Lord, Lord. प्रभु प्रभु चिल्लाते हो। It's talk about what is the meaning of that. क्या मतलब है इसका? You call me that I am a Christian. मतलब अपने आप को एक मसीही Or you कहते हो call me that I am a healer. या कहते हो चंगाई Or you call me that I go to church. अरे मैं चर्च जाता हूँ, Or I am a woman of मैं prayer. रोज प्रार्थना I am करता a हूँ, man of preacher. प्रचार करता I हूँ। save many people life. मैंने बहुत लोगों के जीवन I बचा heal लिया, many people life. चंगाइयाँ कर दी, I am a businessman. व्यापार करता I हूँ, am a prime minister. प्रधान, I am a president. मैं राष्ट्रपति हूँ। All these provincial name will never take to heaven. ये सब जो नाम और ठप्पे हैं ये हमें कभी प्रभु के राज्य में नहीं लेके जाएंगे। Your mouth speaking Jesus will never take to heaven. आपके मुंह से यीशु यीशु बोलने से आप यीशु के घर में नहीं जाएंगे। But what the Bible say? बाइबल क्या बताती है? The person who believe and put into practice will go to heaven. जो इंसान विश्वास करने के बाद उसको जीवन में भी डालेगा वो ही स्वर्ग जाएगा। That is why the Bible say in verse 46, इसलिए 46 में chapter 6, verse 46, 6 के 46 में Mark 46, chapter 6, verse 46, what the Bible say? And look, लूक 6 का 46 वचन what the Bible say? बाइबल क्या बताती है? Why do you call me Lord, Lord, and I do not practice, and you do not practice what I tell तो you? मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो जब जो मैं कहता हूँ तो मानते नहीं हो? Everyone who come to me, हर कोई जो मेरे पास आता है listen वो सुनता है my word मेरे वचन and obey. और जो मानता भी है So I will show you whom he liked. उन्हीं को बताऊंगा कि वो कौन है। The Bible says, बाइबल बताती है everyone who call upon my name, जो भी मेरे नाम को पुकारता है, everyone who talk about Jesus, जो भी यीशु की बात करता है, what he said, वो क्या कह रहा है? not the name, नाम नहीं, but listen to me, ध्यान से सुने। obey my word. प्रभु कहते हैं मेरी बात को सुनो और तुम काम करो, That person will go to heaven, वही इंसान स्वर्ग जाएगा। not the name. सिर्फ नाम नहीं, You listen the word of God. आप बाइबल तो सुनते हैं, You read the Bible. बाइबल पढ़ते भी हैं, You preach the Bible. प्रचार भी करते You हैं, worship the Bible. आराधना भी करते हैं, You live a Christian life. एक मसीह जीवन जी रहे हैं। Unless and until you practice, लेकिन अगर उसे जीवन का जो बोलते हैं वो करते नहीं है, you are not obedient, सब प्रभु की बातों में नहीं चल रहे, then we will not go to तो heaven. स्वर्ग नहीं जाएंगे। That is what the Bible says. Even the person who performs miracle signs and इसलिए बाइबल wonders. बताती है कि जो लोग प्रभु के नाम से चमत्कार करते हैं वो लोग भी The Matthew 7:21. मत्ती 7:21 में You लिखा है cast out the demons कि बहुत लोग शैतानी शक्तियों को in निकालते my हैं name. यीशु मसीह के मेरे नाम Because God's name is से। powerful. प्रभु के नाम में सामर्थ्य है। When you use the name of जब आपके Jesus, नाम को इस्तेमाल करते हो, not you, आपके नाम से not नहीं, me. पास्टर के नाम से नहीं, When I use the name of Jesus, जब पास्टर यीशु का नाम इस्तेमाल that करते name हैं is powerful. तो उसे नाम में सामर्थ्य है। That is why Satan need to obey the name. जब यीशु का नाम शैतान सुनता That है is तो why वो Satan निकलता है। need to go out from that name. इसलिए शैतान को निकलना पड़ता है। That is why Satan need to come out from that इसलिए person. शैतान को उस इंसान से निकलना पड़ता Not है। the person is powerful, वो बोलने वाला प्रार्थना करने वाला but you are सामर्थ्य नहीं। using the name of अगर आप Jesus. यीशु का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, Jesus' name is powerful, यीशु के नाम में सामर्थ्य mighty. महान है। That is why Philippians chapter 2 verse 9 and जिसे 10. फिलिपियों का 2 का 9 से The 11 name में that चलेगा। above all वो every नाम जो हर name. नाम से ऊंचा है, In that name, उस नाम से every tongue must bow down. हर एक घुटना टिक जाता है, Every tongue confess हर that he is जबान God. अंगीकार करती है। So that is why और इसलिए Satan knows that Jesus is a powerful. शैतान को पता है कि यीशु के नाम में ताकत है। Your sickness know that Jesus is आपकी powerful. बीमारी को पता है कि शैतान की यीशु Your का नाम ताकत है। curse know that Jesus is आपके powerful. श्राप को पता है कि यीशु के नाम में Your ताकत है। bondage know that Jesus is आपके powerful. बंधन को पता है कि यीशु के नाम में ताकत So है। when you use that name, जब उस नाम को इस्तेमाल करते हो, when you use, जब इस्तेमाल they करते hear the name, हो, वो नाम सुनती है, not you. आप नहीं, Then they need to move out. तो निकलना पड़ता है। That is why you are healed. इसीलिए आप ठीक होते That हैं, is why you are delivered. इसलिए छुटकारा पा लेते हो। But if you are not put into practice, लेकिन अगर आप जो बोलते हो अपने जीवन में खुद नहीं करते you हो, are I am preaching, मास्टर प्रचार कर but रहे I हो, am not practice the word of God. लेकिन वचन पे खुद नहीं चलती, I am healing the people. लोगों को तो ठीक कर रही है, Cast out the demon. शैतानों को But निकाल if रही है, I didn't obey,
आई है। Name you call Jesus, Jesus will not आप go to यीशु heaven. यीशु बोल रहे हैं लेकिन स्वर्ग नहीं जा पाएंगे But ऐसे। the person who listen, लेकिन जो सुनता है who obey, और प्रभु की बात मानता है, who practice, जो वचन पे चलता है, only go to heaven. वही स्वर्ग जाता है। That only the child of God. और उसी को प्रभु की संतान कहा जाता है, That only the sons of God. उसी को प्रभु का बेटा बेटी कहा जाता That only the family of है, God. वही प्रभु के परिवार का हिस्सा है, That only belongs to Jesus Christ. वही अकेला यीशु का है। There is a many are Christians, सिर्फ क्रिश्चियन तो बहुत है, but many people will not go to heaven पर स्वर्ग थोड़े ही जाएंगे, because the name will not go to heaven. उनके पास ठप्पा वो स्वर्ग नहीं लेके The जाएगा। person who performing medical science and जो wonders, चमत्कार और विज्ञान के काम भी कर रहे to हैं, that many people medical science are आज happening देखते कि दुनिया में कितने चमत्कार हो रहे हैं। everywhere. हर जगह चले जाओ, You see in the YouTube, you see in the Facebook. आप YouTube पे फेसबुक पे देखो, So many miracles are taking place. कितने लोग चमत्कार कर रहे हैं, But the person didn't obey. लेकिन अगर वो इंसान खुद व्यक्तिगत रूप से प्रभु के नहीं The चलता, person didn't walk according to the word of प्रभु के God. वचन पे नहीं चलता, They will not go to heaven. वो भी स्वर्ग नहीं जाएगा। They do so many miracles, they will be in hell. चमत्कार तो कर रहे हैं, फिर भी नरक ही जाएगा। And you are believing in Christ. आप यीशु में विश्वास करते हो, But if you never practice, पर उसके वचन पे नहीं you will चलते, never go to heaven. तो स्वर्ग नहीं जाओगे। That is why the name is not enough. इसलिए सिर्फ नाम या टैग लगाना बहुत नहीं है। And then you say, then what is the else that we need to obey? तो फिर करना क्या है? You say, okay, I use the name, I'm a Christian, and what is the things that God want you to do? तो पास्टर पूछते कि अगर ठीक है प्रभु के वचन में ठीक है, चमत्कार आप कर रहे हो, चर्च जा रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, तो और क्या करना है कि जिसकी वजह से मैं See, सब कर रहा हूं? everyone listening is very easy. हर किसी के सुनना आसान है, Obey is very difficult. पर बात मानना बहुत मुश्किल है। Practical is very difficult. प्रैक्टिकली करना मुश्किल है। Everyone say, I say, don't drink, don't smoke. हर कोई बोलता है शराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। Listening, सुनना तो आसान है, but practical is very difficult. लेकिन करना बहुत मुश्किल है। Everyone I say, don't lie, don't betray, don't do kalazatu. पास्टर बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, गुस्सा मत करो, काला जादू मत करो, But practice is very difficult. पर गुस्सा तो आता है। We continue living हम again. ऐसा ही जीवन जीते हैं। Everyone say, what is that? Don't worship idol. हम कहते हैं मूर्ति की आराधना मत करो, Saying is very easy, बोलना तो बहुत इजी है, but very difficult to go पर out. चलना मुश्किल है। See, everyone teaching is easy. हर किसी को सिखाना तो बहुत इजी है, Listening is easy. सुनना भी इजी है, But you are put into practical लेकिन उसको जीवन में उतारना in your life. आपके जीवन में Very difficult. बहुत मुश्किल है। That is why God said, इसलिए परमेश्वर ने कहा, you call Jesus, Jesus. अब यीशु यीशु तो बोल रहे Listening Sunday after Sunday. हो, रोज संडे आते हो, Reading. सुनते हो बाइबल, Praying. पढ़ते हो, प्रार्थना But करते if you हो, are not obey, पर बच्चे पे चलते नहीं हो, you will never go to heaven. हमें नहीं जाओगे। 1,000 years you are praying. 1000 साल प्रार्थना कर 1,000 लो, years you are doing so many. God used you miracle mightily. आप प्रभु के नाम से चमत्कार भी कर लो, But if you are not follow पर वचन पे खुद नहीं चल रहे, rule and regulation, प्रभु के नियमों में नहीं if चल you are रहे, not follow what the Bible says, बाइबल में लिखा उसमें चल नहीं रहे, you will not go to heaven. तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। Name of Christian will never take to heaven. आपको मसीही ठप्पा आपको कभी स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा, Baptism will never take to heaven. आपको बपतिस्मा भी आपको स्वर्ग नहीं लेकर These जाएगा। things are very important. ये चीजें जरूरी तो हैं, Name are important. नाम भी जरूरी है, Reading are important. बाइबल पढ़ना जरूरी है, Obedience are important. प्रभु के वचन पे चलना भी Prayer जरूरी है, important. प्रार्थना भी जरूरी है, Worship are important. आराधना भी जरूरी है, Coming to church चर्च जाना important. भी जरूरी है, Everything important. हर चीज जरूरी है। But if you didn't practice, लेकिन ये सब करने के बावजूद अपने व्यक्तिगत जीवन में हम इसे करना ही रहे, then you are wasting your time. समय खराब कर रहे हैं। Let us practice. तो इसे अपने जीवन में भी उतारें। That is why the Bible says, इसे बाइबल में उतारें। you say Lord, Lord, आप प्रभु प्रभु तो चिल्ला रहे हो, but you are not listen. पर सुनते नहीं हो, You are not obeying. प्रभु के वचन पे नहीं चलते हो। See now that we come to church, I say you are healed or delivered. अब पास्टर ने बोला आप चर्च आ गए हो, आप ठीक हो गए, प्रभु छुटकारा दे दिया, और घर जाके और घर जाके लड़ाई शुरू, लड़ाइयाँ, गालियाँ शुरू, गाली भी दे रहे हो, ड्रिंक शुरू, शराब भी पी रहे हो, झूठ शुरू, झूठ भी बोल रहे हो, लाके गुस्सा शुरू, गुस्सा भी आ रहा है, addiction never stop. बुरी बुरी आदतें भी कर रहे हो, All kinds of curse and bondage stop. सारे गलत काम कर रहे हो, All these things. ये सब चीजें, That is why many people are delivered. इसलिए बहुत लोग छुटकारा पाके चले तो जाते हैं, Few minutes, थोड़ी देर के लिए, 5 minutes, 5 मिनट बाद शैतान निकल गया, शैतान निकला, बीमारी भी निकल गया. After एक घंटा 1 घंटे के बाद शुरू. फिर दोबारा, Because you are not listening to God क्योंकि वचन पे तो नहीं चल रहे ना, and you are not obeying. वचन पे नहीं मान रहे, That is why इसीलिए we are struggle. हम परेशान हैं। इसके लिए आज का टाइम में हम स्ट्रगल है क्योंकि हम लिसन नहीं होता, ओबे नहीं होता. आपका बच्चा आपका सुन की ओबे होते तो आप क्या होते? ईयर होता. कोई भी मांगते देते हैं, लेकिन आपका बेटा आपका बेटी आप बताएंगे
आपको सुन लेंगे, लेकिन ओबे नहीं करते तो आप कैसे होते हैं? गुस्सा होते हैं, गुस्सा करते हैं, मरते हैं, रोते हैं। लेकिन आपका बेटा आपने बताया था, समझाया था, ओबे करते, आप प्रैक्टिस करते तो आप वाह मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटा है वो ओबे करते हैं। इस जैसा हम भी प्रभु का बेटा भी है। That is what God say. You are calling Father, Father. Lord, Lord will not take you to heaven. इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहे हैं कि प्रभु प्रभु बोलने से आप तुम कभी स्वर्ग नहीं आओगे। Listen to my voice. मेरी आवाज को भी तो Obey. जो मैं कह रहा हूँ करो, Then you will go to heaven. तभी स्वर्ग जाओगे। Then let us important part. तो बहुत जरूरी चीज क्या है? Don't distract your mind. अपना ध्यान ना I भटकाओ। will tell you. पास्टर बताया That's था। what God wants us to obey. तो प्रभु करवाना क्या चाहता है हमसे? Turn to the Bible. बाइबल खोलते हैं। What is the Bible saying? बाइबल क्या बता रही है? He wants us to listen. वो चाहता है कि He हम wants us चलें। to obey. वो चाहता है हम चलें। Chapter 6. Luke chapter 6. लूका 6 Verse 27. Listen carefully today, everyone who are here, 10-20 people. If you listen, your life will be completely changed. तो जितने लोग यहाँ बैठे सब ध्यान से सुनेंगे, सुनेंगे You तो will आपका never, जीवन बदलेगा। your life will never be the same आपका again. जीवन एक जैसा रहेगा ही नहीं। So what is God want us to तो practice? आखिर प्रभु इन सब के बावजूद हमसे क्या What चाहते is हैं? God want us to you to listen? प्रभु क्या चाहते हैं कि आप सुने? What is that? सुने अपना। Verse 27. 27 में लिखा है। But I say to you, who hear me and pay attention to my word, in my English Amplified Bible, pay attention to my word. Love that is unselfish. Seek the best of higher good for your enemy. Make and practice do good to those who hate you. यहाँ पे क्या लिखा है 27 में? लूका 6 के 27 में, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। See, बहुत difficult है. ये बहुत मुश्किल है, But Bible say you listen and obey. पर बाइबल कहती है सुनो और करो, Only you will go to heaven. तभी स्वर्ग जाओ। That's what God wants to teach तो you. प्रभु क्या सिखा रहा है? What God is telling you. प्रभु क्या सिखा रहा है? Love your enemy. दुश्मनों से प्रेम करो। Highest, best things that you can do. सबसे बड़ी चीज आप यही कर सकते हो। आपको एनिमी को प्यार करने का इंसान है ना, इजी है नहीं है ना? हम दूसरा हम लोग को प्यार नहीं करते तो हम भी प्यार नहीं करता। लेकिन बाइबल बता रहा है, Lord, Lord will not take to heaven, but listen to my boy, obey my boy. What is that? To listen to obey. Love your तो enemy. प्रभु कह रहा है कि लॉर्ड लॉर्ड प्रभु प्रभु चिल्लाने से तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, लेकिन पहले आवाज सुनने से, और आवाज क्या है कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। God said, best you give. प्रभु कहते हैं सबसे अच्छा दोगे, Love your enemy. अपने उनसे प्रेम करो। How many people love your enemy? कितने लोग अपने दुश्मनों से प्रेम करते हैं? सब लोग जीवन में, आप लोग का जीवन में सारे हम लोग का लाइफ में दुश्मन है। और क्या है? प्रभु बता रहा है, दुश्मन को प्यार करना। ये मेरे वचन में सुन लो, ओबे करो। लेकिन हम लोग का लाइफ में बहुत मुश्किल है। हम दुश्मन हम लोग के पास आएंगे ना, हम निकल जाएंगे। हम दुश्मन वो रास्ता में जाएंगे ना, हम दूसरा रास्ता जाते हैं। हम दुश्मन हम लोग का खाना पिया सब्जी दिया हम नहीं खाएंगे। और हम दुश्मन बोलाएगा, हम दुश्मन कॉल करेंगे, हम देखेंगे क्या पिक नहीं होगा। But the Bible says love your enemy. तो बाइबल बताते हैं कि दुश्मनों से प्रेम करो। This is my word. ये मेरा If you वचन है। obey, अगर तुम करते हो you will go to heaven. तुम स्वर्ग जाओगे, But if you didn't obey, अगर नहीं करोगे you will not go to heaven. स्वर्ग नहीं जाओगे। This is my word. ये प्रभु कह रहा है। But if you have God, लेकिन अगर प्रभु है easy to obey. तो आपके लिए प्रभु की बात मानना आसान भी है। Today we have so many enemies, आज हमारे कितने दुश्मन हैं and we torture ourselves. और उसकी वजह से हम खुद ही परेशान रहते हैं। You can't able to forgive your enemy, आप अपने दुश्मनों को माफ नहीं कर पाते and you will count what your enemy say. और याद रखते हैं उसने क्या क्या बोला था। मेरा enemy ना मेरा दुश्मन ना मेरा पर, you know, you are making your enemy your brother, sister, your neighbors, your family member, your church member, your pastors, and all these things. और अपने खुद के घर वालों को, अपने भाई बहनों को, अपने पड़ोसियों को, अपने पास्टर को अपने दुश्मन बना के बैठे होते हैं। And so now, और अब and whatever we say, जो भी हम कहते हैं you didn't listen. सुनते नहीं है। But Jesus said, लेकिन यीशु कह रहा है listen to my voice, सुनो मेरी बात, obey me, और करो, calling my मेरे name, नाम को पुकारो, all the Christian name, अपने आप को मसीह बोलो। will not take to heaven. ये सब चीजें सिर्फ But स्वर्ग love में your है। enemy. लेकिन तो दुश्मनों से प्रेम करो, Forgive them, माफ कर दो उन्हें, love them, प्रेम करो। and this is my way. ये मेरा वचन है। So when we love our वे enemy, अपने दुश्मनों से प्रेम करते हैं, we will live in peaceful हम life. शांति से जी पाते हैं। But you are not forgive your enemy. लेकिन अपने दुश्मन को माफ नहीं That is करते, why what you do?
इसलिए क्या करते हैं? You can't eat well. अच्छे से खा नहीं You पाते, can't sleep well. अच्छे से सो नहीं पाते, You can't go well. अच्छे से काम नहीं Because you करते। are carrying the hatred. क्यों नफरत लेके घूमते हैं? You are carrying the bitterness. कड़वाहट को लेके घूमते You हैं, are carrying the pain and sorrow. दुख और दर्द को लेके घूमते हैं। मेरे दुश्मन ने मेरे परिवार को इसे बता दिया, गाली दे दिया, शराब दे दिया। इससे हम लोग का मन रोज दिन सोने का टाइम भी, खाने का टाइम भी, वो उसी साया अब माफ नहीं हो पाया, रो के खाते हैं। लेकिन आपका दुश्मन तो हंस के खा रहा है, आप अपना। So that is the thing that is why the Bible says, listen to my word, love your enemy. इसलिए बाइबल बताती है, परमेश्वर कह रहा है कि मेरे वचन को सुनो और वो क्या है, शत्रुओं से प्रेम करो। हम तो ऐसा नहीं है, हम लोग का दुश्मन है तो और हम दुश्मन बनाएंगे। और प्रीति मेरा दुश्मन हो गया तो और मैं दुश्मन बनाएंगे। प्रीति को मैं नहीं बनाऊंगी, मेरा पास नहीं आएंगे, उधर जाएंगे तो मैं इधर आएंगे, चार जाएंगे तो मैं नहीं आएंगे, और फेलोशिप जाएंगे तो मैं नहीं जाएंगे। ये क्या है? प्रभु का बच्चे ऐसा नहीं है। ऐसा आप करेंगे आप हेल जाएंगे। बाइबल बता रहे हैं, लिसन टू माय वर्ड। आप ऐसे करेंगे, क्रिश्चियन करके, प्रभु का नाम बुला के, मिरेकल करके, काम करके, आपका बजट से इंसान को लोग प्रभु का पास आएंगे। लेकिन आप प्रभु का ओबे नहीं करता, प्रभु का आवाज को नहीं सुनता, तो आप लास्ट में शैतान के पास आएंगे। Because of you, you are bringing so many people into heaven. आप तो अपनी वजह से बहुत सारे लोगों को स्वर्ग तक ले जाने का रास्ता दिखा दिया, But you are hate your enemy. लेकिन खुद दुश्मनों से नफरत You कर are रहे हैं। not forgiving. आप नहीं माफ कर रहे, Then you will go to तो hell. लोगों को तो स्वर्ग ले जा रहे हैं लेकिन खुद नरक जा रहे हैं। Your enemy will go to heaven. आपका दुश्मन तो स्वर्ग जा रहा है। Better to obey. इसलिए प्रभु के वचन पे चलो, Love your enemy. अपने दुश्मनों से प्रेम रखें, Love your enemy. अपने दुश्मनों से प्रेम This रखें। is the promise of ये God. प्रभु का वादा है, This is the teaching of ये God. प्रभु के सिखाई The हुई चीज है। person who love your जो enemy, इंसान अपने दुश्मनों से प्रेम this is रखता the है, real sign of disciple वो of God. सच में परमेश्वर की संतान This is है। the real Christian. वो एक असली मसीह This होता is है, the real Christian. एक असली मसीह होता है। And second, और दूसरी चीज क्या करनी है? what the Bible say? बाइबल क्या बताती है? Listen to my word. मेरे वचन को सुनो। What is that? 28. 28 Blessed are so kindness to those who curse, and you pray for those who have mistreated you. जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। See, Bible says, call the name of Jesus will not take to heaven. बाइबल कहती है प्रभु का नाम लेने से स्वर्ग नहीं जाओ, Obey. चलना पड़ेगा, Listen. सुनना पड़ेगा। What is that? क्या कह रहे हैं? Love your enemy. अपने दुश्मनों से प्रेम Second. करो। और दूसरा क्या है? दूसरा काम अच्छा से सुनना. Second is that, और दूसरी चीज, bless those who curse you. जो आपको श्राप देना उनको आशीष देना। आप लोग गाली देते हैं, कर्ज देते हैं, बाइबल बता रहे हैं, ब्लेस करना, आशीष देना। हम ऐसा नहीं होता, वो कास्ट देते तो हम डबल कास्ट देते हैं। कोई हमें श्राप देता है तो हम भी कहते हैं तू तो ये भी सुन। हम कोई इंसान एक गाली देंगे, हम 10 गाली देंगे। एक इंसान हम लोग का एक गाली कर्ज देंगे, शराब देंगे, हम कितना देते हैं? 20, 4, गॉन। और बाद में तो मैंने इतना बात कर दिया, रिग्रेट भी होते हैं, बट गॉन इज गॉन। पर जब आपने बोल दिया वो बोल दिया, आप वापस नहीं आ सकता। That is why the Bible say, what your Christian name will not take to heaven. इसलिए बाइबल बताती है कि आपके ऊपर जो क्रिश्चियन का ठप्पा है कभी आपको स्वर्ग नहीं Bless जाएगा। the people who curse you. जो आपका गलत करते हैं उनको आशीष दो। This is the Christian life. ये एक मसीह जीवन है, This is the sign of God. ये प्रभु के बच्चे के साथ Listen, my brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों सुनो, Obey. बात मानो, Then you go to heaven. तभी स्वर्ग जाओगे। So Bible says, curse the people who curse you. आप इससे नहीं हो पाएंगे, जॉब नहीं मिलेंगे, आपका परिवार आसानियां हो जाएंगे, आपका लाइफ जिंदगी अच्छा ठीक नहीं होंगे, आपका परिवार मर जाएंगे। वो इंसान को आप आशीष दे दो, प्रभु ने आपको लाइफ आशीष देंगे। कर्ज नहीं आपके पास नहीं आएंगे, वो कर्ज अपना मिलेंगे। So don't afraid when person curses. जब लोग आपको श्राप देते हैं उल्टा बोलते तो कभी ना डरे कि वो चीज आपके जीवन में होगी। That curse will never come to you. अगर कोई आपको श्राप देगा वो श्राप कभी आपके पास नहीं That आएगा। curse will come to that person. जिसने बोला है उसी के ऊपर जाएगा। That is what God says. इसलिए प्रभु कहता My है way is different. कि मेरा रास्ता तो अलग ही है। Human way are different. इंसान अलग तरीके से काम God's way are करता है, different. प्रभु अलग तरीके से काम करता You the way you thought, है। जिस तरह से आप सोचते हो God thought is different. प्रभु ऐसा नहीं सोचता। That is why God loved the sinner
देखते हैं। This is the Christian life. ये मसीह जीवन है। This is the child of God. ये प्रभु की संतान If you है। follow my word, अगर आप मेरे वचन में चलोगे you will be saved. तभी बचोगे। When the person who curses you, जो आपको श्राप देता है, if you bless, अगर आप इसे आशीष दो you will receive your तो blessing. प्रभु आपको आशीष देता है। God will bless you. प्रभु आपको आशीष। That is why verse 37 say, 38 say, 28 say, इसके 28 में लिखा है bless those who curse कि you. तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो। But today many people are afraid. लेकिन आज लोग डरते हैं। ओ मेरे को कर्ज दिया, आपका परिवार ना, वो इंसान ना, वो आदमी ना, वो मदर ना, वो पापा ना, मेरे को कर्ज दिया, मेरा लाइफ आसान नहीं होगा। Today many people are afraid curse. आज लोग तो डर जाते हैं, अरे उसने मेरे को उल्टा बोल दिया, श्राप दे दिया, जरूर लगेगा। Then हम सोचते हैं कुछ आया, ओ उन्हें मेरा कर्ज कर दिया, इससे हो गया। So now you obey that word, you accept it, you faith it, then so Satan is working. अगर कोई आपको श्राप देता है और आप बोलते हो अरे लगेगा लगेगा मेरे जीवन में हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने मुंह से अंगीकार कर दिया है तो जीवन में कुछ भी होगा तो बोला हाँ उसने बोला था ना तभी हो गया। No, ऐसा नहीं होता है। God said, प्रभु कहता है those who curse you, जो आपको श्राप दे bless them. आप उन्हें आशीष दे। That curse will not in you. वो श्राप आपके ऊपर नहीं आएगा, That curse will come upon वो them. उसके ऊपर ही वापस जाएगा। Our brother Manus was telling me, हमारे भैया बता रहे थे the person's 2 years, 2 साल the family casting them that you are mental हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, कोमा हो जाएंगे. So you were sick 2 years. तो भैया बहुत बीमार थे 2 साल तक और तुमका परिवार हमेशा उनको उल्टा श्राप दे देगा, तू बीमार हो जाएगा, कोमा में चलेगा, मर जाएगा। Then he told me when he come to church, लेकिन जब वो कलीसिया में आए God healed him. प्रभु ने ठीक किया। But these people, the person who cursed, now they're in hospital in the coma. और जिन लोगों ने श्राप दिया था वो लोग अस्पताल में बैठे हैं, भैया ठीक है। Our brother is telling me, pray for that person. I want to save that और भैया family. कह रहे हैं कि अब मुझे उन लोगों की प्रार्थना करवानी कि वो लोग ठीक हो जाए, I love them. उनकी मदद See, करनी। this is the Christian life. ये एक मसीह जीवन है। So when people curse you, जब लोग आपको श्राप दे don't curse back. उन्हें श्राप ना दे, Don't be angry. कोई गुस्सा भी ना हो। And don't go, है ना, कोई इंसान आपको कर्ज दे दिया, क्या है, गन पकड़ के गाजा के छंग और लड़ाई कर दिया. No. Go say if the person curse you. अगर कोई इंसान आपको श्राप देता है Bless him. उन्हें आशीष दो। उन्हें बताएंगे ना आप ऐसा नहीं हो जाएंगे, आप ऐसे करना, आशीष दे दो, प्रभु आशीष दे दो, क्योंकि आपका पास ऐसा नहीं आएंगे, प्रभु ने आपको देंगे, उन्हें नहीं देंगे। आपका परिवार में आप गरीब हो जाएंगे, ओ आप बताओ आशीष, प्रभु का आशीष दे दो, क्योंकि उन्हें गरीब नहीं पहुंचाएंगे। कौन गरीब देते हैं, सैतान गरीब देते हैं, प्रभु आपको आशीष देंगे। That is why when the people curse you, bless them. इसलिए जब लोग आपको श्राप दे तो आप उन्हें आशीष दो। This is the Christian life. ये एक मसीह जीवन है, You need to practice. आपको ये करना होगा, That person will go to heaven. वही इंसान स्वर्ग जाएगा। Then third, what the Bible say बाइबल में क्या लिखा है? in verse 29. 29 में Those who strive on your test, offer him other things also, and then also lose them. Do not be bothered. Realize, maintain your dignity. Whoever take away your God, do not uphold your sword from idol. And then this is the thing. 29 में क्या लिखा है? बहुत difficult है, पढ़ लो सब लोग. हाँ. जो तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले, मींस कपड़ा छीन ले, उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। This is God want us to listen and ये प्रभु obey. चाहते हैं कि हम करें। Bible what the Bible say? बाइबल क्या बता रही है? Fast, पहले love your enemy. अपने दुश्मनों से प्रेम करो। Second, दूसरा, bless those who curse जो you. श्राप दे उन्हें आशीष दे दो। Third, तीसरी चीज what the Bible say? बाइबल क्या बता रही है? If the person feel like this, जो आपको एक थप्पड़ मारे, like this, that दूसरा भी हाँ उनका भी कर लो, दे दो. Bible बता रहा है. So when the person beat you, give another also. अगर कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो भैया ये वाला भी दे लो, हाँ भी मार दो। हम तो इधर नहीं है. कोई इंसान थप्पड़ मारेंगे ना, हम 2-3 जाके थप्पड़ मारेंगे. कोई इंसान आपको ऐसे थप्पड़ मारेंगे, साला करके हम टैक 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 करते हैं. But Bible teaching is different. प्रभु the way God teaching is different. जो प्रभु सिखाता है वो अलग सिखाता है। Bible बता रहा है verse 29 में इस तरह से लिखा है. 29 में When the person said beating you like जो this, आपको एक थप्पड़ मारे, one also give it. उसे कहो कि ये भी इस पे मार दो। The others also give it. What is the meaning of that? इसका मतलब क्या है? God say, बाइबल में when the person curse you, when the person hit you, when the person the questions भी होते हैं, आपका लाइफ मिस होते हैं, प्रभु का वचन की है. Forgive them. तो बाइबल ये क्या बता रही है? कोई आपको श्राप दे, कोई मारे, कोई गाली दे, कुछ गलत करे, उसे माफ करो। Don't give back. ये नहीं सिर्फ बदला मत लो। Give back meaning another thing also offer means forgive the person. यहाँ पर दूसरे गाल को भी आगे करने का मतलब ये नहीं कि ऐसे खड़े हो जाओ, मतलब उसको
गया हो गया। And that person, you leave them. और छोड़ दो उसको। That is the thing. But we are difficult to forgive. लेकिन हमारे लिए माफ करना बहुत We मुश्किल है। are want to revenge. हम कहते हैं बदला तो लेके ही छोड़ेंगे। So God said, don't be revenge. पर बाइबल बताती है कि बदला मत लो। If the another person come and hit you, whether you are wrong or right, चाहे आपने सही किया हो या गलत किया हो, don't be revenge. बदला मत लो। Revenge belongs to me. बदला प्रभु कहता है मैं If the person wrong, अगर वो इंसान गलत था, God will give प्रभु punishment. कह रहा है मैं अपना देख लूंगा। Not you. आप मत देखो। When you give जब punishment, आप बदला लोगे, only few moments that will pain. तो उस इंसान को थोड़ी देर तो दर्द होगा। But when God give punishment, लेकिन प्रभु बदला लेगा ना, God will give it forever. प्रभु उसको हमेशा के लिए याद रखवाएगा And God will put it to hell. और प्रभु उसको नरक में मिलाएगा। So you have nothing to revenge. तो इसलिए आपको बदला नहीं लेना है। So Bible says, Bible teaches, बाइबल क्या you बता रही है? obey these things, तो इन चीजों पे आप चले, will go to heaven. तभी आप स्वर्ग This is जाएंगे। the real sign of God. ये सच्चे संतान का We are very difficult to obey. पर ये मान नहीं पाते। When somebody hit you, जब कोई आपको मारता है, not only your hand, हाथ से ही नहीं, you took the stick and beat. आप हाथ से मारकर आप डंडी लेके मारते हो आपसे। So God says, this is not my प्रभु rule. कहते हैं ये मेरा वचन नहीं है, This is not my teaching. ये मैं सिखाता नहीं है, This is not my principle. मेरा प्रिंसिपल ये है ही नहीं। You need to remove. आपको निकालना पड़ेगा। If the person beat you, अगर कोई आपको मारे, forgive them. उसे कहो कोई बात नहीं, Love them. उनसे प्रेम करो, Don't revenge. बदला मत लो। If you obey this word, अगर आप ऐसा करोगे, if you put it to अगर practice, इस जीवन में उतारोगे, then you are the real तभी sign of God. सच्चे परमेश्वर की संतान कहलाओगे। Not that you are a Christian. ये नहीं मसीही, Not that, oh, Jesus, Jesus. ये नहीं कि यीशु यीशु, Not will go to heaven. ये करने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। Who practice the word of God जो परमेश्वर के वचन में चलता will है, go to heaven. वो ही स्वर्ग जाएगा। 4th point. चौथी चीज, In verse 30, 6 to 30. Give to everyone who asks of you. Whoever take away what is you, do not demand it back. जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। Today God is teaching you आज प्रभु क्या सिखा रहा है? through me. पास्टर के द्वारा Obey this word. इस पे चले। So the Bible says, बाइबल बता रही है, Christian means मसीही मतलब give things to people. लोगों को अपनी चीजें दे, And when you give, और जब आप दे दे, don't expect that the person will give back. ये ना सोचे वापस भी आएगा, But we give, some people will give back. कि आप दे रहे और नहीं वापस आएगा। और हम देते हैं और वापस नहीं आता, तो कैसे होते हैं? हम गुस्सा करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, पुलिस बुलाता है, जेल डालते हैं। क्यों? क्योंकि आपने दिया था, उन्होंने वापस नहीं दिया। लेकिन बाइबल टीचिंग ऐसा नहीं है, प्रभु का प्रिंसिपल ऐसा नहीं है। Bible say, if somebody you have given, give them. बाइबल कहते हैं किसी को आपने दे दी तो दे दिया, वापसी की उम्मीद मत रखो। Don't expect that to come ये ना back. सोचो वापस भी देगा वो, You are expecting, आप उम्मीद करके and बैठते that हो person is not give और back. फिर वो देता नहीं है, Then you are hurting. फिर कड़वाहट आ जाती है। Your pastor will ask 1,000. पास्टर ने 1000 मांगे, You are giving me. आपने दे दिए, And you are expecting कब पास्टर देंगे, कब पास्टर देंगे, कब पास्टर देंगे। तो पास्टर नहीं दिया, तो आप पुलिस बुलाएंगे, पास्टर का घर आएंगे, मैंने पैसा दे दो, और मैं नहीं देंगे, जेल में पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है। God said if the person asks and you give something, don't give her. तो बाइबल बताती है कि आपने किसी को कोई चीज दे दी है तो उसके बाद उसे वापसी लेने की उम्मीद ना करें। आपका सामान हो, प्रॉपर्टी हो, आपका कपड़ा हो, पैसा हो, कोई इंसान को दिया, प्रभु का प्रिंसिपल है, दिया तो दिया, एक्सपेक्ट मत करना, प्रभु ना आपको और देंगे। एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड। पर उम्मीदें लोगों से नहीं, लेकिन प्रभु से करें। अगर आपने किसी को दिया तो प्रभु से ज्यादा आपको अपने आप देंगे। When you give 100, अगर आप किसी को 100 रुपए देते don't हैं, expect उम्मीद ना God करें will give you 2,000. प्रभु अपने आप ही 2000 दे देंगे आपको। That is why this is my principle. God said, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं ये मेरा नियम है, this is the Christian life. ये एक मसीह जीवन है। And if you give it to something, अगर आप किसी को कुछ देते हैं don't expect that. तो उम्मीद ना करें। Today the world we have problem लेकिन what? आज दुनिया परेशानी किस We वजह are से है? facing problem. हम क्यों परेशान We हैं? are fighting, family are fighting, लड़ाइयाँ क्यों होती है? brother sister are भाई fighting. बहन क्यों लड़ रहे हैं? Because क्यों? we expect something. हम उम्मीद करते हैं, We thought that a property belongs to your mother, अरे प्रॉपर्टी तो मम्मी की है, and you are expect to have आप it. उम्मीद कर रहे हैं मुझे If मिलेगी, you didn't have it, और जब मिलती नहीं है you put your brother, your sister to put into prison. तो अपने भाई को कोर्ट केस कर देते हैं। That is why today many families are suffering. और इसलिए बहुत सारे परिवारों में लड़ाइयाँ हैं। You give something, दे तो दिया, you are expecting और back, उम्मीद भी करके बैठे हैं, and not giving back. और जब वापस नहीं Every आता, day, हर रोज asking, मांगते रहते हैं, fighting. लड़ते रहते हैं, That person doesn't have to give back, अरे देता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, and that person also cannot able to sleep, और वो इंसान फिर cannot able to eat, ना सो पाता है ना खा because पाता है। every day you are giving pan, de do. No, so God say no. परमेश्वर कहते नहीं, This is not my ये principle. मेरा नियम नहीं। If you give it, अगर दे दिया if you give
give one sow, अगर एक दे दी शर्त, if you give 1,000, एक 1000 if you give property, एक प्रॉपर्टी दे if दी, you give job, जॉब दे दी, if you offer कुछ something, दे दिया, don't expect तो back. उम्मीद मत करो वापस भी आएगा। I expect to me. अगर उम्मीद करके तो मुझसे I will करो, give you to you. मैं दूंगा तुम्हें। Today our society having problem आज हमारी सोसाइटी में क्यों परेशान है? because we are expecting to receive. क्योंकि हमें मिलने की उम्मीदें ज्यादा हैं, And if you didn't receive और it, जब मिलता नहीं है then you put it to jail. तो जेल में। Many people are in jail आज बहुत सारे लोग जेल में हैं because they are arrested. क्योंकि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। That is how the world is living. दुनिया ऐसी ही है। That is why God said, no, this is not. परमेश्वर कहते नहीं, This is not the side of God. ये प्रभु की संतान होने का चिन्ह नहीं है। And then also 4 point, 5 point. What the Bible say? बाइबल क्या बता रही है? Verse 31. 31 में Treat others the same way you want them to treat you. जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा ही उनके साथ करो। Treat the person लोगों से ऐसे व्यवहार करो the way you treat yourself. जैसे आप सोचते हो कि लोग आपसे व्यवहार करें। See, मैं अपना से ट्रीट करते हैं। कैसे पहना है, कैसे खाना है, कैसे अपना से केयर करते हैं। ऐसे जैसा प्रभु का वचन बता रहा है, हम भी प्रभु का बच्चा है तो आप अपना का ट्रीट करते हैं, इंसान का भी ऐसे जैसा ट्रीट करते हैं। हम अपना तो अच्छा से ट्रीट करते हैं, इंसान को तो कुत्ता जैसा ट्रीट करते हैं, है ना? दुनिया में ऐसा है ना? हम अपना सोचते हैं, अपना सुंदर सोचते हैं, दूसरा को सुंदर नहीं सोचते। हम अपना हैंडसम सोचते हैं, दूसरा को हैंडसम नहीं सोचते। हम अपना अमीर सोचते हैं, दूसरा को गरीब सोचते हैं। बाइबल का वचन ऐसा नहीं है। बाइबल बता रहा है, God said that treat the way you treat others also. बाइबल बताती है जैसे तुम चाहते हो लोग तुमसे व्यवहार करें, वैसा तुम लोगों से व्यवहार When you treat yourself nicely, जब अपने लिए अच्छा सोचते हो you treat the other person, तो दूसरे के लिए भी ऐसे ही and सोचो, other person will treat you. ताकि दूसरा इंसान भी आपसे अच्छा व्यवहार Today we करे। want respect. लेकिन आज में इज्जत तो चाहिए। हम रेस्पेक्ट चाहिए, हम ऑनर चाहिए, हम लोग को ना वाह चाहिए, लेकिन हम दूसरा को तो गाली देते हैं, हम दूसरा को तो इज्जत नहीं देता, हम दूसरा को तो क्या रेस्पेक्ट नहीं देता, हम दूसरा को कंडेम करते हैं। That is why what you give you receive back. इसलिए जो आप करते हैं वही आपको मिलता है। That is why you are not receive back respect because you are not respect others. इसलिए तो आपको इज्जत नहीं मिलती कि आप लोगों को इज्जत नहीं देते। So the Bible teaching, God is teaching तो us. यहाँ परमेश्वर क्या सिखा रहे हैं? See Jesus Christ, यीशु मसीह 2023 years back 2023 साल पहले on this earth, इस धरती पर He never fight, उन्होंने कभी लड़ाई नहीं करी, He never gully, कभी गाली नहीं दी, He never curse. कभी श्राप नहीं दिया, He sit with the sinner. पापियों के साथ रहे, He go with the prostitute. वो प्रोस्टिट्यूट के साथ भी He घूमते eat थे, with them. उन्हें खाते भी थे। Then all the righteous people, लेकिन जितने धर्मी लोग थे, Pharisee people, फरीसी लोग, prophet, प्रॉफिट teacher, भविष्यवक्ता, pastor, टीचर थे, गुरु Christian. थे। What kind of guru is ऐसे this? कैसा गुरु है? Eating with the अरे sinner, पापियों के साथ घूमता walking है, with the prostitute. वो व्यभिचार करने में घूमता है। But when he come to the people life, लेकिन जब वो ऐसे लोगों के जीवन में आया, people life of लोगों change. के जीवन बदल गए। Jesus treat the way he treat the यीशु जैसे others. अपने आप को ट्रीट करता था, वैसे दूसरों को ट्रीट किया। So the Bible says Christian means तो बाइबल बताती है मसीह लोग that you the way you treat, जिस तरह से आप अपने आप को You treat व्यवहार others. करते हैं, वैसे दूसरों से the way व्यवहार you करते love हैं। yourself, जैसे अपने आप से प्रेम करते हैं, love others. दूसरों से प्रेम करते हैं। हम ऐसा नहीं होता। मेरा को बेस्ट चाहिए, मेरा को बेस्ट खाना चाहिए, मेरा को ज्यादा चाहिए, दूसरा को कम दे दो, मेरा को बेस्ट कपड़ा चाहिए, दूसरा को गंदा दे दो। That is why what you give you receive back. इसलिए जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। That's what the Bible says. The way you treat others, you treat yourself, so that people will treat you. इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जैसे अपने आप से चाहते हो वैसे दूसरों से व्यवहार करो ताकि So दूसरे that भी आपसे many अच्छा people व्यवहार करें। want love, peer. आज बहुत लोगों को प्यार चाहिए, हस्बैंड को प्यार चाहिए, वाइफ को प्यार चाहिए, मामा पापा को प्यार चाहिए, बच्चों को प्यार चाहिए, लेकिन हम प्यार नहीं देता, तो कहाँ से मिलेंगे? हस्बैंड वाइफ को प्यार नहीं देता, तो वाइफ कहाँ से प्यार देंगे? और वाइफ हस्बैंड को नहीं प्यार करता, तो प्यार कहाँ से वाइफ कहाँ से हस्बैंड को प्यार करेंगे? और बच्चा लोग को आपको बच्चा को प्यार नहीं करता, तो कैसे बच्चा आपको प्यार करेंगे? आपका भैया बहन को आप प्यार नहीं करता, तो कैसे भैया बहन आपको प्यार करेंगे? ये पक्का है, प्रैक्टिकल है। That is why God say, the way you treat yourself, treat others. So that बाइबल कहती है कि जैसे तुम खुद से प्रेम करते हो ऐसे दूसरों से भी व्यवहार करो। this is the Christian life. ये मसीह जीवन है, This is the sign of God. ये प्रभु की संतान होने का चिन्ह है। Very difficult, right? ये मुश्किल सबके लिए है, To put into practice this इसे value. जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है, सुनना बहुत आसान है।
Let us put into practice. तो आइए कोशिश करें आज से Then ये your समझ life will be a ताकि blessing. आपका जीवन अच्छा होने Your पाए, life will be a आपका beautiful. जीवन सुंदर होने पाए, Your life will come across another level. आपका जीवन अलग ही लेवल पे चला जाए। Amen. आमेन। And another point और अगली चीज in verse 32. 32 में, If you only love those who love you, what credit? If you and a sinner also the same thing you do. If you do good to those who do good, what is the credit the sinner also doing? Verse 32 and 33. The Bible says, if you will love the person who love you, what is the credit? अगर जो आपसे प्रेम करते हैं, अगर आप भी उन्हीं से प्रेम कर रहे हैं, तो आप एक क्या बड़ा काम कर रहे हैं? You have already received in this world. ठीक है, ये तो व्यापार की बात है। God is not giving you. प्रभु ने नहीं दिया ऐसा। If you give the people who are giving you, जो आपको देते हैं, आप भी उन्हीं को दे रहे हैं। then what credit you have? तो क्या बड़ा काम कर रहे You हैं? have already received it. तो जो चाहिए था मिल गया। God is not necessary to give you तो प्रभु आपको क्या देगा? because you have received it. क्योंकि आपको मिल गया ना उसका इनाम। So the sinner, the people who didn't believe, no Christian, they also doing the same thing. तो जो लोग प्रभु में विश्वास नहीं करते ना, वो भी यही करते हैं। The people who didn't believe, the world is doing the same thing. दुनिया में भी तो आज यही हो रहा है। So Bible say no. बाइबल कहती है नहीं, It is not my principle. बाइबल कहती है मेरा नियम ऐसा नहीं, My disciples should not be like this. मेरे चेले ऐसे नहीं होने My चाहिए, believers should not be मेरे like this. विश्वासी ऐसे नहीं होने This चाहिए। is my teaching. ये मैं सिखा रहा हूँ। Love your enemy अपने दुश्मनों से प्रेम करो, so that you will be loved. ताकि आपसे प्रेम Treat the करें। other person. दूसरों से प्रेम करो, And those who curse, bless जो them. आपको श्राप दो उनको आशीष दो, Give the things to them. उनको अच्छी चीजें दो Don't demand them. और वापस मत मांगो। And then also verse 35. Verse 34 and 35. What the Bible say? If you lend money to those whom you expected to receive back. See, you are giving money that you know that the person will give back. अब आप लोगों को उधार देते, पता है कि उधार दे रहे हो, वापस तो नहीं देगा, नहीं बनता। तो हम देते हैं. तभी देते नहीं तो नहीं देते। This is not God's rule. प्रभु कहता है ऐसा नहीं करो। गरीब ना आपका पास मांग लेंगे ना, आप नहीं देंगे. क्यों? आप मालूम है वो इंसान वो गरीब लोग है, पैसा नहीं वापस देंगे. आप मालूम है इसके लिए आप हेल्प नहीं करते. That is God saying this is wrong. प्रभु कहता है गलत है, This is not my ये principle. मेरा कानून नहीं है। Today many people, poor people come to your house. आज बहुत सारे गरीब लोग आपके घर में आते They हैं, will lock the door. आप दरवाजा बंद कर देते हो And they ask me, please मेरे को help करना. तो आप मालूम है वो इंसान वापस नहीं देंगे. इसके लिए आप दरवाजा बंद करेंगे, आपका मूड इधर मोर्गी निकल जाएगा. But God said no. तो परमेश्वर कहता है नहीं, You need to help them. आपको उनकी मदद करनी है। So this is my principle. तो ये मेरा प्रिंसिपल है। And then also the Bible says in the verse 35, 35 में, love them unselfishly. शत्रुओं से प्रेम रखो, Help them भलाई करो, and be merciful to them. उनमें दया दिखाओ Don't expecting them. और उनसे उम्मीदें मत करो। But this is my, principle that Christian life that you need to live. और ऐसा मसीह जीवन जियो। And then also 36, 36 में, be merciful दया दिखाओ and be compassionate और करुणा दिखाओ and be thankful और धन्यवाद दो, because your Father is the merciful. क्योंकि आपका पिता भी एक दया करने वाला पिता है। So the children of God, तो प्रभु के लोग, we should be merciful to them. हमें लोगों पे दया दिखानी चाहिए। हम merciful नहीं होता. आज का लाइफ में दुनिया में क्या हो रहा है? आज दुनिया में क्या हो रहा है? People are not loving, no mercy people. लोग एक दूसरे पे दया नहीं करते। Human being इंसान treat like a man. But I see people, they treat dog, animal, love more than human being. आजकल लोग जो इंसान है ना, कुत्तों से ज्यादा प्यार करेंगे, उनको जानवर बना के अपने घर में रखेंगे, लेकिन इंसानों से इतने अच्छे से बात नहीं करते। कुत्ते को अच्छा खाना बना के खिलाते हैं, रास्ता में बुलाते हैं, पार्क में घर पे डालते हैं, सारे एक्सपेंडिचर करते हैं, लेकिन इंसान को ई देना, हेल्प करना इंसान लोग को बहुत मुश्किल है। ये दुनिया है, हम लोग का दुनिया है। और जंगल में वो तो आप नहीं देंगे, वे जिंदा करेंगे, प्रभु ने बनाया, प्रभु ने देंगे, जरूरी नहीं है। So now if you are not provide, so God will provide for them. अगर आप जानवरों को नहीं खिलाएंगे तो भी प्रभु ने उनको ऐसा बनाया, कहीं ना कहीं से कुछ खा के जिंदा रह ही सकते। जंगल में चलो, पार्क में चलो, दिल्ली ब्रिज में चलो, इतना महंगी है, ठीक है, इतना महंगी है, कितना ट्रक लेके बनाना लेके खिलाता है, लेकिन इतना गरीब है, बेघर है, रास्ता में रोड पे कपड़ा नहीं है और घर नहीं है, इतना गरम पे रह रहा है, उन लोगों को तो इंसान कोई नहीं दिखता। इस दुनिया में that is why God is seeing us and He is crying. और इसलिए परमेश्वर हमें देखता है और रोता है। If you are not giving monkey food, God will give them. अरे अगर बंदर को केला नहीं दोगे ना, वो प्रभु को दे देगा।
प्रेम रखो, Forgive them. को माफ करो। Obey my word. मेरे वचन में Listen. सुनो, Put into practice. अपने जीवन में This उतारो। person will go to heaven. यही इंसान स्वर्ग जाएगा। Not carry the name of सिर्फ Jesus. यीशु यीशु बोलने वाला स्वर्ग नहीं जाने वाला। Amen. आमेन। And then another one. और एक और चीज, Verse 37. 37 वचन में, Do not judge. और दूसरों का न्याय मत करो, Do not condemn. और दूसरों का नकारो भी मत, So that you will not be condemned. ताकि तुम्हें भी नकारा न जाए। See, हम जज करने को बहुत इजी होता है। Bible says, do not judge. बाइबल कहती है न्याय मत करो। Matthew 7:1 मत्ती 7 में 1 also says, do not judge. वो भी कहता है न्याय मत करो, Do not condemn. दूसरों का नकारो मत। हम जज करने को बहुत इजी है। कैसे जज होता है? ओ परिवार तो इससे है, ओ इंसान तो इससे है, ओ इंसान तो अनएजुकेटेड है, ओ इंसान तो जॉब नहीं है, ओ परिवार तो कला जादू करते हैं, ओ परिवार तो मरते हैं, ओ परिवार तो बहुत हम जज करने को बहुत इजी हो। When you judge this one, she will come back to you. इसके लिए बाइबल बताता है ना, अब तो तीन आपके पास आएंगे, अब। So that's a God says don't judge. इसलिए परमेश्वर कहता है कि न्याय मत करो। आप प्रीति को मैं प्रीति आप ऐसा होता है, प्रीति आप गंदे हैं, प्रीति आप सुंदर नहीं है, प्रीति आप काला है, क्या होता है? मेरा तीन आएंगे, आप तो काला है ज्यादा प्रीति से, आप तो बहुत गंदा है प्रीति से, मेरा पास तीन आते। That's what God says, don't judge. इसलिए परमेश्वर कहता है न्याय मत करो, Don't condemn. दूसरों को नकारो मत। There is a sister Sarika what is say in Bible study time पे, हम ऐसा होता है तो मैं ऐसा नहीं करेंगे, मैं किस्सा करेंगे। तो हम ऐसा करेंगे तो क्या होता है? 500 आपके पास 10 आएंगे। आमेन? इसका मतलब प्रभु मत करना। इसलिए परमेश्वर कहता है न्याय मत करो। So the Bible says don't judge. इसलिए बाइबल कहती है न्याय मत करो। This is the Christian life. ये एक मसीह जीवन है। Forgive them. उन्हें माफ करो, Don't condemn. नकारो मत। आप जज करेंगे, आप एक लोग आपका पास जज करेंगे। आप दूसरा को सुंदर नहीं है, आप सुंदर दूसरा को गरीब है, आपको बताएंगे, 3 लोग आपका पास भी बताएंगे। कैसे? आप गरीब हो, आपका जॉब नहीं हो, आपका परिवार अच्छा नहीं हो, 3 लोग आपको जज करेंगे। That is why God says don't judge them, bless them, forgive them. इसलिए परमेश्वर कहता है कि माफ करो, आशीष दो और छोड़ो। और हम कहेंगे ना, गॉसिप बहुत इजी होता है, स्पेशली लड़की लोग। चुगलियां करना बहुत आसान होता है। हम ना दूसरों को जज करके चुगली करके बैठे गली पे, कॉलोनी में, बरेंदा में, रास्ता पे जाके मन में का घर से हो रहा है, आज का दिन तो लड़ाई कर दिया, हस्बैंड ने घर से तोड़ दिया, हस्बैंड ने निकल दिया, मन में फोन में करके। Bible says this is wrong. बाइबल कहती है चीजें गलत है। Those people who are doing like that, जो लोग ऐसे चुगलियां करते हैं, pray for them. उनसे प्रार्थना This करो। is your duty. ये आपका काम है। Don't be put them condemn. उनको नकारो मत। Don't be put them, rejected. If you condemn, अगर आप नकारोगे, if you judge, अगर आप न्याय करोगे, God will judge you. प्रभु आपका भी न्याय करेगा। If you condemn, अगर आप नकारोगे, God also will condemn. प्रभु भी आपको नकारेगा। That is what God says. इसलिए परमेश्वर Don't कहता है condemn. कि नकारो, Don't judge. नकारो, Don't gossip. न्याय मत करो, चुगली मत करो। Put it to me. If the person judge you, अगर कोई आपको कुछ गलत कहता है, if the person condemn you, कोई आपको नकारता है, surrender to God. छोड़ो, God surrender to God. प्रभु को दे दो। God will judge that person. प्रभु अपने आप उसका न्याय करेगा। God will condemn that प्रभु person. अपने आप नकारेगा उसको। When God condemns, जब प्रभु नकारेगा, when God judges, जब प्रभु न्याय करेगा, nobody cannot stand. कोई नहीं खड़ा रह सकता। But if you judge, लेकिन अगर आप न्याय if करते you हो, condemn, अगर आप नकारते हो, that person's life will nothing तो happen. उसका जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। You'll be tortured. आप अपने आप खूब परेशान That's करो। why don't judge. इसलिए नकारो Don't मत, condemn. न्याय मत करो। Surrender to me. प्रभु कहता है मुझे समर्पण I करो। will deal with that person. मैं अपने आप उसके साथ देखूंगा। You need to forgive them. तो आपको उनको माफ करना And God जरूरी will judge है। them. और प्रभु उसको देखेगा। God will condemn them. प्रभु अपने आप Who नकारेगा। are you to judge? आप कौन है कि आप लोगों का न्याय Because करते we हैं? also sinner. क्योंकि हम भी तो पापी हैं। You also have पाप करते हैं. हम भी रोज पर पाप So करते we are हैं। not worthy to तो judge. हम किसी को न्याय करने के लायक नहीं You are हैं। not worthy to condemn. हम दूसरों को नकार नहीं Who are you सकते। to condemn others? हम दूसरों को नकारने वाले होते Who are हैं। you to condemn the poor people? कैसे हम गरीबों को Who नकारते are हैं? you to condemn the uneducated कैसे people? हम जो अनपढ़ लोगों को नकारते Who हैं? are you to condemn the slum people? कैसे हम झुग्गी में रहने वाले लोगों को नकार दें? You are not God. आप प्रभु थोड़ी हो, God will do. प्रभु करेगा। So God said, if the person judges you, अगर कोई आपको नकारता है, if the person curses you, कोई आपको श्राप देता है, if the person treat you bad, कोई अगर आपको बुरी तरह से व्यवहार करता है, leave them, छोड़ दो, forgive them, माफ कर दो, help them.
उनकी मदद I करो। will bless you. प्रभु आपको आशीष And I दे। will deal that person. और प्रभु कह रहे हैं, मैं अपने आप उसको डील कर लूँ। Amen. आमेन। This is the Christian life. ये मसीह जीवन है। Amen. आमेन। And then also the Bible says, और बाइबल बताता verse है 30, up to when? In verse 30, verse 39. Just read verse 37, say verse 38. Give and it will be given to you. Amen. And there will be poured into your lap and good pressure down, sticking together, running over, and no space left no more. And stand the measures of your use, do good to others, and be measured to your back. Amen. Verse 38, read. Oh, Luke 6. We are still in the Luke 6. लूका 6:38 दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। Amen. So the Bible says, do good to others. तो दूसरों का अच्छा करो, Then God will bring down the blessing that you cannot able to तभी contain. प्रभु आपके जीवन में इतना आशीष दे देगा कि आप संभाल नहीं You पाओगे। will just say, no? You love your enemy. अपने दुश्मनों से प्रेम You करो, treat the other person as you treat अच्छे yourself. से दूसरों का व्यवहार करो, You didn't judge the people. दूसरों को न्याय You मत didn't करो, curse the people. दूसरों को श्राप मत दो, You didn't condemn the people. दूसरों को नकारो मत। You're merciful to the आपकी people. दया, तुम Obey दया the करो, God teaching. प्रभु के वचन में चलो। And if you live according to अगर this आप ऐसे जीवन जियोगे what I teaching today, जो प्रभु ने the सिखाया है, Bible says, बाइबल बताता I है, will bless you. मैं तुम्हें आशीष दूंगा, And there is no place to contain in और your कोई house. जगह ही नहीं रहेगी Even if तुम्हारी। you're sitting like this, आप हिलते and रहोगे, your blessing will press इतना down. दबाव आएगा आशीषों का आपके जीवन में। So the more you bless people, जितना आप आशीष दूसरों को the दोगे, more blessing will come. उतना ही आशीष प्रभु से The more आपके you जीवन love में। people, जितना आप लोगों से प्रेम the करोगे, more love will उतना ही come. लव आपके The जीवन में more you आएगा। respect जितना आप others, लोगों से the इज्जत respect करोगे, will come. उतनी इज्जत आपके The जीवन में more you आएगी। give to जितना आप people, लोगों को दोगे, people give it to उतने you. लोग आपको देंगे। This is the Christian life. ये एक मसीह जीवन है, This is the principle of ये God. एक जीवन प्रभु का कानून है। Amen. आमीन। Not the name the Christian. सिर्फ मसीह नाम नहीं, If you are not practice this, अगर आप इसको जीवन में नहीं you उतारते, will not go to heaven. आप स्वर्ग नहीं जाओगे। Amen. आमीन। God is good. All the time। And then 39. God is giving us a parable. प्रभु ने हमें दृष्टांत कहा है। He also told them a parable. Can a blind man guide the blind? Will that not fall into hole in the ground? क्या एक अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? See, blind man cannot guide another blind man. एक अंधा व्यक्ति कभी दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखा सकता। The God is telling us. प्रभु कह रहा है, If you judge the other judge, अगर दूसरों का न्याय करोगे, you also blind man, you blind again. तो आप भी खुद अंधे होगे। If the person you love, those people who love, then you also like a blind man. अगर आप उन लोगों से प्रेम कर रहे हो जो आपसे प्रेम करते हैं, तो आप उस अंधे व्यक्ति की तरह हो। If the person who give, you also give, then you also like a blind अगर कोई man. आपको देता है इसलिए ही आप उसको दे रहे हो, तो अंधे व्यक्ति की तरह कर रहे हो। Then you are blind. The blind man cannot lead the another blind. एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को मार नहीं So if the सकता। person is not forgiven, अगर कोई माफ नहीं कर रहा, you need to forgive him. आपको माफ करना पड़ेगा। If the person judges you, कोई आपको न्याय करता you है, need to forgive him. आपको माफ If करना the है। person slaps कोई you, आपको मार रहा है, you need to forgive him. आपको माफ करना है। If the person is telling you गाली, you need to bless कोई them आपको गाली दे रहा है, आपको आशीष दे रहा है, so that that person also saves ताकि वो इंसान भी बच जाए and that person also walk in the right और path. वो सही रास्ते पे चलने लग जाए। That is the God teaching us. ये प्रभु सिखा रहा है। And then also Bible also telling us the 40. If the student knows superior than teacher, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। Amen. Teacher is not, student is not superior than teacher. कोई भी जो विद्यार्थी होता है अपने टीचर से बड़ा नहीं होता, But लेकिन when the student complete the graduation, जब एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन कर खत्म होता है, ट्रेनिंग खत्म होता है, then one day he become also a teacher. वो भी एक टीचर बनता But है। as long as the student cannot be the teacher, लेकिन जब तक एक विद्यार्थी एक टीचर नहीं बन पाता, as long as student cannot be a superior. जब तक कोई स्टूडेंट जो है एक विद्यार्थी है वो अध्यापक But नहीं the बन Bible पाता। said, but when the person completed लेकिन जब वो इंसान पूरी पढ़ाई कर लेता है, ट्रेनिंग कर लेता है, then will be like a teacher. तो टीचर की तरह बन जाता है। Amen. Before you was student, you cannot become a teacher. पहले अगर आप विद्यार्थी थे तो आप अध्यापक नहीं बन सकते, But after you finish पर खत्म करने के बाद training course, ट्रेनिंग के you बाद become a teacher. आप टीचर बन पाते हैं। Now you are a member. अब आप मेंबर बन गए, You are not superior than a pastor. अब आप एक पासवान से ऊपर नहीं है, You are not a superior than another person. आप दूसरे इंसान से ऊपर नहीं है। But लेकिन when you grow in the जब Lord, प्रभु में बढ़ते हैं, when you come up to the stage, जब आप स्टेज पे आ जाते when हैं, you believe in जब faith, विश्वास कर लेते हैं, trusting, आप विश्वास करते हैं, the भरोसा teaching of रखते हैं, God,
प्रभु के वचन की, then one day तो एक दिन you become a teacher, आप भी सिखाते you हैं, become a pastor, आप पास्टर you बनते become a हैं, missionary. आप मिशनरी बनते हैं। That is that God is teaching us. ये प्रभु सिखाता है। Amen. आमेन। This is the name of God. And then also verse 41. Why do you look the speck that is in your brother's eyes, but you do not consider the log that in your own eyes? तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है 41, 42 पढ़ो। और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। Amen. The Bible says, you have your own eyes, your dirty cousin. My eyes is cousin is there, I put it. But I try to cousin take out from pretty eyes. You are not consider yourself. तो अगर आप अपनी खुद के जीवन में खुद की आंख में मैल है, मिट्टी है, तो दूसरे की आंख साफ नहीं कर सकते। Bible says, बाइबल you are not clean yourself. आप अपने आप को साफ नहीं करते। You are addiction. आप खुद दूरी आदतों में खुद झूठ बोलते हो, You are लड़ाई, you are गुस्सा. खुद लड़ाइयाँ गुस्सा करते हो, You are bitterness, दुरुद, anger. You are stealing, खुद कड़वाहट भरते हो, चोरी करते हो, killing, not forgiving others. दूसरों को माफ नहीं करते, But you try to other in और आप दूसरों को बोलते हो अरे भैया ये गलत काम मत करो। That's what God said. तो प्रभु की कह रहा Set है, yourself first. पहले अपने आप को साफ करो, You clean yourself first. अपने आप को साफ करो, Remove your anger first. अपने गुस्से को निकालो, Remove your adultery अपने first. व्यभिचार को निकालो, Remove your idol worship अपनी first. मूर्ति पूजा को निकालो, Remove your addiction first. अपनी बुरी आदतों को निकालो, Remove your beauty first. पीढ़ी को निकालो, Remove your tobacco first. तंबाकू को भी निकालो, Remove your telling lie first. झूठ बोलने को निकाल दो, All the evil things that you are practicing. जितनी गलत चीजें हम कर रहे हैं उन्हें निकालो, Look yourself पहले first अपने आप को साफ करो, and tell to others. तभी दूसरों को बोलो। But the world is not like पर that. दुनिया ऐसी नहीं है, We are not looking at हम ourselves. पहले अपने आप को देखते नहीं है, हम सब लोग को देखते हैं, इधर भी गलती है, इधर भी गलती है, इधर भी गलती है। हम दूसरा को पढ़ते बताता है न्यूज़ में, फोन में, घर में, लेकिन अपना खुद तो नहीं चेंज नहीं करता। That is not God's children. तो प्रभु की संतान ऐसी नहीं होती, That is not the child of God. प्रभु की संतान ऐसी नहीं If होती। you are living as a Christian like अगर that, आप एक विश्वासी का जीवन जी रहे you हैं, will go to heaven. सिर्फ विश्वासी के जीवन रखने से आप प्रभु के पास नहीं You will जाएंगे, go to heaven. आप नरक में जाएंगे। So God said, प्रभु के कह रहे हैं, remove yourself. अपने अंदर से गंदगी Remove निकालो, the idol worship. उनकी पूजा को निकालो, Remove the lie. झूठ बोलने को निकालो, All kinds of addiction. दुनिया को बुरी आदतों को निकालो, Remove all kinds of murder. सारे खून को निकालो, Immorality. व्यभिचार का दोष को निकालो, All kinds of evil things. सारी गलत चीजों को निकालो, Remove fast. उन्हें पहले निकालो। That is God said, take your fast. प्रभु कहते हैं पहले अपने आप को साफ करो, So that tell the ताकि others. दूसरों को बोल पाओ। But today many people they लेकिन आज didn't लोग see ऐसे us. नहीं करते, They didn't see others. अपने अंदर देखते नहीं है, Every day they looking for हमेशा others. दूसरों में गलतियां देखते Every day they are searching. बोलते हैं, अरे कहाँ गलती है, कहाँ गलत है, उनका दिख करके निकल के बताता है. That is not the Christian life. And then also another thing, read verse 43. Yeah. Talk about the day. I'm going to finish soon. Today the board is really teaching to you and obey. Your Yeah. life will be great. मैं फिर 43वें वचन में लिखा हुआ है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना कोई निकम्मा 45 तक. ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। Amen. Apple tree will never bring the mango. आम के पेड़ में कभी सेब नहीं उगते, और ट्री अच्छा नहीं होता है तो बच्चा एक्सपेक्ट मत करना अच्छा है. So God said the good tree will produce good fruit. तो बाइबल बताती है अच्छे पेड़ पर ही अच्छे फल आएंगे। Today we are suffering. आज हम क्यों परेशान हैं? Why? क्यों? I see many people suffering today बहुत लोग आज परेशान हैं, because we are the fruit of our parents. क्योंकि हम अपने माता पिता के फल हैं। Your parents, the way they live, जिस तरह से माता पिता जीते हैं, they curse people, श्राप देते हैं, they do kala jadoo, काला जादू करते killing the हैं, people, लोगों को मारते हैं, upset the people. बलिदान खून का Today बलिदान you are चढ़ाते हैं, suffering. और इसलिए आप परेशान हैं। Yesterday we are dealing one family. कल एक परिवार का छुटकारा मिला यहाँ पर। Satan said, शैतान ने क्या I बोला? am old person. अरे मैं बहुत पुराना हूँ। कैसे? कैसे पुराने हो? पीढ़ी से आया था. पीढ़ी से बलिदान देते आ रहे हैं तुम्हारे पूर्वज। So वो बता रहा था Satan, मैं old हूँ. So that child is not old, very young. लेकिन वो जिसके अंदर वो बुरी आत्मा है वो तो बहुत जवान है। So I know
करना चाहते He हैं। is coming from the four इसका जो generation. आत्माएं वो पूर्वजों से आ रही है, Rule the family. परिवार पे कार्य कर रही है, Witchcraft, black काला magic, जादू, killing तंत्र people, मंत्र कर रही है, idol worship, मूर्ति पूजा कर रही है, sexual immorality, व्यभिचार कर रही है, corruption, भ्रष्टाचार dealing with property, और गरीबी के साथ झेल रही all है, kinds of things. ये सारी चीजें। Now the fruit is suffering. और अब क्या है, पेड़ तो लगा दिया, अब फल भुगत रहे हैं, Now the fruit is suffering अब बच्चे परेशान हैं, because the tree is producing. क्योंकि पेड़ ने फल लाया ही ऐसा है। That is what Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा, How can the good tree will bring out the good fruit? तो ऐसे बाइबल में यीशु मसीह कह रही है, अगर बुरा पेड़ है तो अच्छे फल कहाँ से आएंगे? Good tree will bring out the good fruit. अच्छे पेड़ पे ही तो अच्छे फल If आएंगे। you are good, अगर आप अच्छे हैं, your children will become आपके good. बच्चे अच्छे होंगे। If you believe in Jesus, अगर आप यीशु में विश्वास करते हैं, your children will believe. आपके बच्चे यीशु में If विश्वास you are not telling अगर lies, आप झूठ नहीं बोलते, your children will not आपके lie. बच्चे भी झूठ नहीं If you are बोलते। not addiction, अगर आप बुरी आदत नहीं है आपकी, your children will not आपके do. बच्चों में भी नहीं होगी। If you are not anger, अगर आप गुस्सा नहीं करते, your children will आपके not बच्चे do. भी गुस्सा नहीं करते, Because your children are seeing क्योंकि you आपके बच्चे आपको रोज देखते हैं, every day. हर रोज देखते What हैं। my mother कि said, मेरी मम्मी की कैसी what है, my father मेरे पापा कैसे said, करते what हैं, my father mother मेरे wedding, पापा क्या पहनते हैं, what they respect किस others, तरह से लोग की इज्जत what करते they हैं, tell to किस तरह से people, लोगों से बात करते what हैं, they train. कैसे बात करते Your हैं। children are watching आपके all. बच्चे आपको पता नहीं लेकिन हर चीज आपकी देखते हैं। And when they grow, जब बड़े हो जाएंगे they will follow that वो one. ऐसा ही करेंगे। That is God is teaching us. प्रभु यही सिखा रहा है। The bad fruit, the bad tree don't expect the एक bad बुरा fruit. पेड़ अच्छे फल नहीं लाता, Bad tree will produce bad fruit. जो बुरा पेड़ है बुरे फल ही लाएगा। Drunkard child become a एक drunkard. शराबी का बच्चा शराबी ही बनता है, Addiction child one day become जिसके addiction. अंदर बुरी आदत उसके बच्चे बुरी आदत वाले ही बनेंगे। Divorcee children one day they will आप देखिए divorce. जिनके तलाक होते हैं उनके बच्चों भी अधिकतर तलाक ही होते हैं। So change our life, तो अपने जीवन को बदले, change your life, अपने जीवन को बदले, change your family. अपने परिवार को बदले। Then your children, your fruit become a. इसलिए आप देखेंगे अपने जीवन के आपके फल अच्छे बनेंगे। Because today you are suffering. आज आप परेशान हैं, Your parents are आपके suffering. माता पिता ने परेशान हो गए रहे, So don't be try to suffer again your children. तो अब अपने आने वाले बच्चों को परेशान ना करना। Now you settle your अब life अपने जीवन को भी ठीक कर ले, so that your family ताकि आपके आने generation वाली पीढ़ियां तो सही हो, they will be blessed. वो ठीक होंगे। Amen. आमीन। God is good. All the time। Follow, obey. तो इस पे चले। Obedience is better than प्रभु की sacrifice. आज्ञा मानना किसी बड़े बलिदान से बढ़कर। That is why the Bible says, इसलिए बाइबल बताती है verse 46. 46 से Why do you call me Lord, Lord? अरे क्यों कहते हो मुझे प्रभु प्रभु, But you are not listening to me. बात तो सुनते नहीं मेरी। This is now I am teaching you. प्रभु कह रहे Listen. हैं, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुन लो, Obey. वचन पे चलो। That is the triumph. ये प्रभु की संतान है That is the Christian life. और ये मसीह जीवन है। You say I'm a Christian. अगर आप अपने आप को विश्वासी You say I'm करते a हो, pastor. आप बोलते हो मैं एक पास्टर हूँ, You say I'm a आप businessman. बोलते हो मैं व्यापार You say करता I'm हूँ, a man of आप prayer. बोलते हो प्रार्थना Woman करता of हूँ, prayer. और प्रार्थना I am करता हूँ, taking fasting. मैं उपवास करती हूँ I do all things. और मैं सब कुछ करती हूँ, But if you didn't obey, लेकिन अगर वचन पे नहीं if चलते, you didn't अगर practice, वचन पे नहीं चलते then you will never तो सब obey. बेकार है। So what today God is तो teaching प्रभु us? क्या सिखा रहा है आज? This is the word of God. ये वचन है, Obey. इस पे चले। What to obey? क्या चलना है? Love your enemy. अपने दुश्मनों से प्रेम Don't करो, judge. न्याय मत करो, Don't condemn. श्राप मत दो And don't treat the other very bad. और दूसरों को बुरी तरह से व्यवहार मत करो। The way you treat, जिस तरह से करोगे, treat other. अपने आप को जैसे व्यवहार चाहते हो वैसे ही Respect करो। others. दूसरों की इज्जत करो, Help others. मदद करो, Pray for them. प्रार्थना करो। This is a Christian life. एक मसीह जीवन है, Then you will go to heaven. तभी आप स्वर्ग And the जाओगे। whole world obey this और Bible. पूरी दुनिया का इस बाइबल पे चलने लग जाए, There is no problem in this world. परेशानी खत्म हो जाएगी दुनिया में। Today, what is our problem? आज हमारी परेशानी क्या है? Nobody love one another. कोई दूसरे प्यार नहीं करता, Hatred one another. नफरत भरी है, Fight one another. लड़ाइयाँ करते हैं, Greedy, envy, jealousy. लालच करते हैं, जलन करते हैं, Bitter, anger. घबराहट है। That is why we are facing problems. इसलिए तो आज हम परेशान हैं। But if God teaching us, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता if है, the whole world follow, अगर पूरी दुनिया करने लग how जाए beautiful the world तो will मुझे be. दुनिया कितनी सुंदर हो How जाएगी, blessed the world will कितना आशीषित हो जाएगी। be. Today also, we also the same thing. आज हमारे जीवन में भी यही है, We read Bible, हम बाइबल पढ़ते हैं, we listen, सुनते हैं, but we never obey. पर चलते नहीं हैं। But let us be the पर children आज of से this कोशिश day करें चलने वाले, and obey. और वो बच्चे वाले जो परमेश्वर की बात मानते हैं, Then all the blessing that God has given तब us, सारे आशीष जो प्रभु की ओर से आते हैं you will receive आपको मिलेंगे, on this earth, इस धरती पे, in heaven also. स्वर्ग में भी। The Bible says yesterday we are studying बाइबल में हमने कल क्या पढ़ा? 2 Corinthians chapter दूसरे 4. कुरिन्थियों चौथे अध्याय The में Bible says, बाइबल में लिखा है, for your sake, अपने लिए I created all things. प्रभु कहते हैं मैंने सब कुछ बनाया, आपके लिए. और प्रभु ने आपके लिए सब कुछ बनाया, मेरे लिए सब प्रभु कुछ ने बनाया। गरीब नहीं बनाया. प्रभु ने अपने लिए गरीबी नहीं बनाई, प्रभु ने जॉबलेस नहीं बनाया. प्रभु ने डाइवोर्स नहीं बनाया. प्रभु ने एडिक्शन नहीं बनाया. प्रभु ने
हमारी चिंताएं नहीं बनाया, सैतान ने बनाया। So when you obey God, जब प्रभु के वचन में चलते हैं all this Satan will go सारा शरीर का काम निकल जाता है and you will be blessed. और आप आशीषित हो पाते हैं। But if you did not obey लेकिन God, अगर प्रभु के वचन में नहीं चलते that means you obey तो Satan. मतलब शैतान की बातों पे चलते हैं There is one. और इसलिए Satan is tormenting you. शैतान आपको परेशान So करता let है। us open our eyes, तो अपने आँखों खोले, spiritual eyes. आत्मा को खो। Don't live the way your parents live. जैसे माता पिता जीते थे वैसा जीवन आप Come on. बाहर निकले वहाँ से Live a new life. एक अच्छा नया जीवन जिए। Make your family अपने परिवार को सुंदर बनाए, beautiful home, एक अच्छा घर बनाए, blessed home, आशीषित घर बनाए, so that your generation, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ so that you will go to heaven. ताकि आप स्वर्ग जाएं। Amen. आमीन।